have with us our mom, our son Shoaib, and daughter-in-law Samiha, and the three of our lovely grandchildren, Iman, Mustafa, and Nusaiba. We live in Pakistan and are fortunate enough to be living together in the same house, mashallah. I love being a grandmother. The challenges and the experiences remind me of my own grandparents with increasing gratitude each passing day. I think we all know the importance of being honest. Understanding the value of honesty and the consequences of being honest are an important part of a child's development. It's important for us as parents to teach and reinforce honesty in a kind and patient way and be an example of it ourselves. We as a family believe in the age-old phrase, honesty is the best policy. If we really want to give our best, start and end with being honest. This lesson is designed to help you teach and demonstrate honesty at home. Your family will learn what it means to be honest, why being honest can be difficult sometimes, what lying reveals about our character, how people who speak the truth earn the trust of others, and what the consequences are when you develop a habit of being dishonest. No materials are necessary for this lesson. You will simply share a story provided in your own words and have a discussion based on the story. At the end of the lesson, you can check your children's understanding of what you have taught. Having honesty at home is so important. Keep practicing this with your family and your relationships will get stronger. Enjoy this lesson. आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट कर लें हमारे साथ जनरेशन से मनीका मैडम गजाला सिद्दीकी स्टार्ट कर लें Miss Naveen will start inshallah, some protocols and then inshallah. जी Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. On behalf of Generation School, I, Naveen Jahan Zeb, would like to welcome you all to this award-winning course by Franklin Covey team. This course has been created and the name of the course is Stay Home, Stay Productive. This course has been created with modules on how to manage stress, how to understand others, and how to express empathy. The course will be covered in a 2-day webinar, and the timings will be 11 to 1, both days, today and inshallah tomorrow as well. Now, just for everyone's ease and to ensure that the webinar continues without disruptions and otherwise with minimum disruptions, I'm going to be sharing a few guidelines and would really appreciate if they are followed, inshallah. So number one is all participants are muted. And if you have any queries, you may post them to the host by the name of Q&A in the chat. And you may also have your videos off, especially if you're experiencing low bandwidth. Now I'm going to be inviting our respected Vice Principal, Mrs. Nurani, to take this webinar forward, inshallah. And Jazakallah from my side. Happy learning, everybody. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Naveen for this introduction to the webinar and of course our being together for these 4 hours, 2 hours today and 2 hours tomorrow. I'll introduce Mr. Fazil Niazi as the person who's going to take this forward, inshallah, with us. He's from Franklin Covey Education at Pakistan, and he's country manager for across Pakistan.
for Franklin Covey Education. Now, he is a trainer and a facilitator for the past 14 years and has got his expertise on child holistic development, and that is how he's going to take us forward into learning about how to keep our children engaged in learning, especially at this time now with being at home, staying home. With this, of course, we all know what Franklin Covey is. Our children are already engaged in this program for quite some time now with a leader in me at school. So they'll continue to learn those habits and being able to put them into practice. So over to Mr. Fazal Niazi. Jazakallah for being here with us and carrying this forward for us. Thank you. Fazal Niazi sir, Thank you, Madam Rani. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum, everybody, and welcome to this new learning. Stay safe, stay productive. ये जो टाइम हमारे यहाँ गुजर रहा है इस वक्त पेंडेमिक का, और जो हम लॉकडाउन में अपने घरों पर महदूद हैं, ये हमसे पहले मौजूदा किसी भी जनरेशन ने नहीं देखा, और शायद हमारे बाद काफ़ी लंबे अरसे तक ऐसा मुमकिन ना हो। ये हमें अपॉर्चुनिटी भी, इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। तो हम ये जो मुश्किल वक्त है, इसके अंदर जिन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत है, मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है। क्या ये सबको नज़र आ रही है? या अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो वो चैट बॉक्स में इसमें बात कर सकते हैं कि वो नज़र नहीं आ रही। इस चैलेंजिंग टाइम में, इस तरह का टाइम आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा हमें इस तरह की किसी चीज़ से नहीं गुजारेगा। लेकिन यही वो वक्त है जब हमें समझने की, दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, एम्पथाइज करने की, और लोगों की कहानियाँ, उनके अंदर क्या चल रहा है, बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, ये समझने का मौका अल्लाह ताला ने डेलिबरेटली दिया है कि हम डेलिब्रेशन के साथ ये कर सकें। अगर हम इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर कर पाएँ। इसी सिलसिले में ये कोर्स है और हम ये 2 दिनों में मुकम्मल करेंगे। आज हमारा सेशन है 11 to 1 और कल फिर हमारा सेशन होगा 11 to 1। एक तो हम सब ने कमिटमेंट करनी है कि कल के सेशन में हम अवेलेबल होंगे ताकि हम अपनी लर्निंग मुकम्मल कर सकें। ये जो आप जिस जगह से मैं आपको ये कोर्स शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा लर्निंग पोर्टल है, और ये आपको भी अवेलेबल होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह फॉर योर लर्निंग। आप अपने बच्चों के साथ लर्निंग कर सकेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे एक सवाल है कि क्या कामयाबी की बुनियाद शक्ल सूरत पर है, हासिल किए गए नंबरों पर है? जिंदगी में कामयाबी की बुनियाद नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या हमारी शक्ल सूरत पे डिपेंड करती है, या हाई IQ पे करती है, या फिर कुछ और है जो कामयाबी की बुनियाद है? आप क्या समझते हैं इसमें? आपकी मुझे पार्टिसिपेशन भी चाहिए साथ साथ, कि आप किस चीज़ को समझते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाबी की वजह है। क्या हाई IQ कामयाबी की वजह है? क्या मेरी शक्ल सूरत कामयाबी की वजह है, या कुछ और है? कुछ क्या ऐसा है जो हम समझते हैं कि ये कामयाबी की वजह है ज़िंदगी में, इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है? जी, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जिंदगी में कामयाब होते हैं? वो क्या मामला है जिसकी वजह से हम जिंदगी में कामयाब होते हैं? क्या वो हाई IQ है? क्या वो हमारी शक्ल सूरत है? क्या मेरे नंबर्स हैं जो मैंने हासिल किए, या कुछ और है? इसके पर आपसे मुझे फीडबैक चाहिए। आप चैट बॉक्स में जा करके आप आंसर कर सकते हैं हमें। एक बिल्कुल इम्तिसाल आरिफ साहब ने हमें कहा इससे करेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी। जी,
तो एक जवाब आया है हमें कि वो क्या चीजें हैं, जैसे मैं एक रिप्लाई छोड़ो जी। हम कितने और हमें रिप्लाई चाहिए पेरेंट्स से? चैट बॉक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिप्लाई हमें आया था चैट बॉक्स में कि जी करेक्टर। तो और कितने हम फीडबैक हमें चाहिए आपसे? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है सबको? मैडम नूरानी, आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है फजल साहब? आपकी आवाज आ रही है जी। हैबिट्स एंड कैरेक्टर, मोहम्मद अहमद क्लास 6K से उनके पेरेंट्स हैं, they're saying the habits and character is this is a basic requirement to succeed in life. For the success in life, the basic trait which is required is character. Great. ये वो बुनियादी चीज़ है जो हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए। Thank you very much for adding into our learning. हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो ग्रेट है, जो करेक्टर है, ये पैदा कैसे हो, उसमें आपका और तालीमी इदारे का क्या किरदार है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम बैंडविड्थ को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मैं अपना कैमरा ऑफ करने लगा हूँ ताकि मेरी स्क्रीन की शेयरिंग ऑन है, तो मैं यूटिलाइज बैंडविड्थ बेटर। इसमें अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। तो the following responses: ambition, passion, good intention. Ambition, passion and good intentions are basically related to what? Honesty related to what? जी, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। और आजकल जहाँ हम मौजूद हैं, जिस जगह हम मौजूद हैं, जिस टाइम में हम मौजूद हैं, ये स्ट्रेस की बायस है। People are losing their jobs, they are at home. बहुत सारे जिसे कहें कि हम स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जो आज की सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए। तो हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं अपनी, और एक वीडियो हम एक साथ देखते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इट। ये मिडिल स्कूलर्स की एक वीडियो है जो स्टूडेंट्स ने ही बनाई है, हम आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद हमारी ट्रू लर्निंग स्टार्ट होगी। Hey guys, welcome to the Max and Holly show. He's Max. And she's Holly. And today we're talking about stress and anxiety. To be honest, we tried to film this segment yesterday and it didn't quite go to plan. Yeah. Hey guys, welcome back to the Max and Holly show. That's Holly. He's Max. And today we're talking about stress. Isn't that right, Holly? What's wrong with you? Well, you know what's wrong with me. You told me to stay up all night playing video games. Pretty sure you were the one who thought that was a great idea. I did. And now I'm here and I'm tired. And you can do this one without me. No, we have a lot planned for today's episode, starting with a math quiz. What? Here you go. First one to finish the test wins this delicious donut. Darn it. I haven't had breakfast yet. I'm start. Ready, set, go. Wait, Max, this is actual math, and I carry the donut. Holly, this is second grade math. It's really But easy. I'm so tired. I can't do it. And done. Wait, no, My Max, prize. Please, can I just a little bit? No. Just have a bite. Oh, Please, I'm starving. do you want a last bite? Yeah, can I just the last one? Oh. No! All right, time for challenge number 2. The winner of this challenge wins 2 free movie tickets. I like the movies. I know you do. And this challenge should be easy for you, Holly. All you have to do is answer some simple questions. Okay, How was your day yesterday? fine. What did you do?
stuff. Oh, what kind of stuff? I don't know, stuff, I guess. Could you elaborate on what you mean by... No, okay. Can you just leave me alone? Because if you ask me another question, I'm gonna freak out. Sound a little stressed. Do you want to, like, talk about that? No more questions. Okay. Well, safe to say you failed the challenge. What? Why? You couldn't even hold a simple conversation with me, and you just yelled at me. Because you're being annoying. I was asking how your day was. I was asking how your day was. Okay, yeah, that's very mature. You know what? Maybe we should just shoot this episode Maybe tomorrow. we should just shoot this episode tomorrow. Yeah, okay. See you then. Yeah, see you. You know what? Just maybe don't come back. I'll just do it myself. Oh, maybe I won't. Yeah. So, are you feeling better today? Oh, you have no idea. I hope I didn't say anything too mean yesterday. Well... I'm sorry. Don't worry about it. It was actually perfect. What do you mean? Well, it was my own personal experiment on stress and anxiety. What? I wanted to see how much sleep, or in this case, lack of sleep, affects someone's mood. Okay, that is so mean. Am I like your personal guinea pig or something? But it worked, right? Okay, that's not even scientific because I never stay up all night. Okay, imagine if you stayed up playing video games and ate junk food for like a bunch of nights in a row. Don't you think that would catch up with you and affect your mood? Well, like, yeah, probably. Of course it would. It's scientifically proven that some of the leading causes of stress in people's lives are poor sleeping and poor eating habits. So let me get this straight. Are you telling me that if I get 8 hours of sleep and have a good breakfast, all my problems are going to disappear? No, of course not. You're still going to have to deal with stressful situations and tough times, but don't you think it'd be easier to face those challenges if you weren't bogged down by how tired and hungry you were? Okay, but that's really hard because I can stay up as long as I want. Listen, I get you, but you have the power to get enough sleep and eat your vegetables. But seriously, the next time you're feeling stressed or not yourself, think about how much sleep you're getting. You would be surprised at the connection. Thanks, Dad. No worries. That's all the time we have this week. See you guys next time. Bye. जी आपने वीडियो देखी आपसे सवाल है कि वीडियो आपको सही आ रही थी आप देख रहे थे या कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था जी It was okay. Thank you. Thank you. थोड़ा सा लैग करेगा कहीं पर तो आपका आवाज अगर सही आ रही है तो दैट्स ओके चलिए हम यहाँ तो आपने एक डिस्कशन देखी और उसमें आपको ये पता चला कि अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न और हमारा ईटिंग पैटर्न अगर सही नहीं होगा तो हम स्ट्रेस में आएंगे हम यहाँ से अब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है एज पेरेंट और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपके साथ और हमने करना है तो सबसे एक अहम चीज़ है वो है दैट इज़ डेली प्राइवेट विक्ट्री हम एक वीडियो दोबारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके बाद हम आगे गुफ्तगू कर जारी रखेंगे Life can be tough. It can test us, it can stretch us, even push us to our breaking point and sometimes beyond. With all of the demands that we have to juggle, it is easy to become imbalanced, stressed out, or to even feel empty inside. And if we don't take the time every day for renewal, we simply won't have the capacity. We won't have the strength or the energy or the insight to deal with life's challenges. Trying to live without renewing ourselves each day is like trying to cut a piece of wood with a dull saw. You can't do it. To gain the power you need to face life's challenges, you must make time each day to sharpen the saw. Habit 7 surrounds all the other habits because, simply put, it's the habit that makes all the other habits possible.
It's about preserving and enhancing the single greatest asset you have, you. It means regularly renewing and strengthening the 4 key dimensions of your life: your body, your mind, your heart, and your spirit. Let's start with the body. Body represents our physical energy and our capacity to do things. We can keep ourselves sharp in this area through regular exercise, through good nutrition, proper rest, and of course, finding time to relax. Mind represents our mental sharpness, our ability to think clearly and to make good decisions. We renew ourselves in this area through continuous learning, writing, reading, as well as planning and organizing, so our minds are not cluttered and we get very clear on what needs to get done. Heart represents the quality of our relationships. We can sharpen our saw in this area by taking time for people, by taking time to build and to strengthen and to sometimes repair most important relationships. In other words, by making daily deposits into the emotional bank accounts of other people. And finally, spirit. Spirit represents that inner self that exists far beneath the surface of your everyday self. It represents your center, your deepest convictions and your values, your source of purpose and meaning. We can renew ourselves in this area in many ways, such as spending time in nature or meditation, listening to inspiring music, thinking deeply on our mission and our values, religious worship, or meaningful service. Sharpening the saw each day in the physical, the mental, the social, and the spiritual dimensions is a practice we call the daily private victory. I recently had an experience that tested my commitment to my own daily private victory. That morning, my alarm sounded. Usually I get up and exercise, plan, get ready for the day. But I was up late the night before and I was so tired. And I thought to myself, I don't have time today to sharpen the saw. But as I was lying there, I could hear my father's voice in the back of my head saying, like he always said, "Sean, have you ever been too busy driving to take time to get gas?" So I got up and I went down to my basement. I exercised. Immediately after exercising, I sat on my couch in the basement and I read inspiring literature for a few minutes. I then took time to plan my day. I started by looking at my mission statement, and then I reviewed each of my roles and the key goals and things I wanted to accomplish for each role. I got really clear on the few things I had to get done that day. It gave me perspective. As I continued planning, I also realized that I needed to apologize to my wife for something I'd said the night before. So I finished my planning and I went back upstairs. The whole routine only took about 45 minutes. After getting ready for the day, I went to my wife and I apologized. It turned out I really needed to, and she let me know that. However, it made a huge difference in how we both felt as we started the day. And as I walked out the door for work, I felt refreshed. My most important relationships were in order, and I had a very clear view of the day ahead. As it turned out, my private victory that morning helped me in so many ways throughout the day. I had to make a number of very pivotal decisions that day, and I felt this great sense of wisdom and judgment to help me. But it could have gone the other way. I could have stayed in bed and rushed through the morning and missed the opportunity to invest in my own capability to live that day well. I highly recommend this simple practice of sharpening the saw by spending time every day having your own daily private victory. Find a routine and a time that works for you. It will affect every decision and every relationship. It will greatly improve the quality of every other hour of the day, including the depth and the restfulness of your sleep. And it will build the long-term physical, mental, and spiritual strength that we all need to handle these challenges in life. So commit now to winning your own daily private victory. Even when it's hard, even when you don't have time or don't feel like it, and even when you don't want to wake up, it will make all the difference. We receive one feedback that have some conversation with your inner self. Thank you. Mindfulness also works to control stress and anxiety. Definitely. Bilkul.
have some conversation with yourself, self-test, check reality, manage your time, take a break, be realistic, repeat yourself. Thank you. Thank you. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप इसे सवाल पूछते हैं कि how many of us has for ourselves planned for these 4 areas for daily private victory? हम में से कितने हैं जिन्होंने इन 4 एरियाज के लिए प्लान किया ड्यूरिंग दीज डेज? अल्लाह ताला ने हमें दे दिए हैं। अल्लाह ताला ने खुद ही रीसेट का बटन प्रेस किया पर दुनिया के लिए, पूरी दुनिया रीसेट से गुजर रही है। तो हम भी रीसेट में आए, हम अपने घरों में रहे और हमें वक्त मिला एक दूसरे रहने का। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लान किया? क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक हम मेजर नहीं करेंगे, नापेंगे नहीं किसी चीज़ को, हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने किया? तो आई नीड द फीडबैक इन चैट बॉक्स के, आप अपना फीडबैक हमें दें कि हाँ हमने किया है। हमने इन 4 एरियाज में दिल, दिमाग, जिस्म और रूह। दिल, मुआशरे में लोगों से ताल्लुक, सोशल कॉन्टैक्ट्स की बेहतरी। दिमाग, अपनी इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन। जिस्म, अपने आप की फिटनेस का ख्याल रखना। और रूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक। इन 4 एरियाज में हमने कितना इम्प्रूव किया और क्या हम डेली इस पे कोई काम करते हैं, प्लान काम करते हैं? आपसे रिस्पांस रिक्वायर्ड है इन चैट बॉक्स। अगर आप हमें इसमें देंगे, जैसे जैन उस्मानी साहब ने हमसे शेयर किया, और कुछ शेयर करेगा तो वो भी हम शेयर कर लेंगे। नहीं ज़्यादा वक्त हम आगे मूव करने की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। आई होप मेरी आवाज़ आपको सबको क्लियर आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है सबको? जी न्याज़ी साहब आ रही है। जी। Yes, Minal Ata, try keep planning and but not much satisfied. It's 50%. Well done, but आप 50% तक तो आए. Let's keep it up. बेहतरी की तरफ जाएंगे. We are doing very good. What do you do to take care of your body? What do you not do? Could you make any improvements? Yes, Mr. Masood Saab. And yes, but partially. Excellent, but कहते हैं कि किसी भी बड़े सफर की इब्तिदा पहले कदम से होती है, छोटे कदम से होती है। If you are doing it partially, or someday you will be doing it, as a whole आप कर रहे होंगे। Trying, very good, excellent. इन 4 एरियाज में हमने हमेशा अपने आप को बेहतर करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम, जैसे वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बाज़ लोग इस दुनिया से 20 और 22 साल की उम्र में रुखसत हो जाते हैं क्योंकि वो मुअस्सर नहीं रहते। और मुअस्सर रहने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के इन 4 शोबों में मुसलसल बेहतर करना है, बेहतरी लानी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम भी अपना असर खो जाएंगे। और मुअस्सर वही लोग होते हैं जो एक लेगेसी छोड़ते हैं, और लेगेसी के लिए ज़रूरी है कि आप इन 4 शोबों में मुसलसल अपने आप को बेहतर कर रहे हो। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम मुअस्सर नहीं रहेंगे। अच्छा, रिलैक्स कर रहे हैं हम। आजकल का ज़माना है, लोग कहते हैं कि आप तो घर पर मौजूद हैं हम और लेट्स रिलैक्स। लेकिन अगर हम रिलैक्स को उस तरह से लें जिस तरह से रिलैक्स करना चाहिए तो थोड़ा सी डेफिनेशन फर्क हो जाती है। आप लोगों को एक चैलेंज है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट कैन लोअर योर स्ट्रेस लेवल्स। तो आपसे सवाल है कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको मालूम है। उसके बाद फिर हम एक वीडियो देखेंगे और देखेंगे क्या हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। चैट बॉक्स में आप शेयर करेंगे ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाती हैं। यस, शेयरिंग इज केयरिंग, सेल्फ काउंसलिंग। जी, और क्या? एक्सरसाइज एंड बुक्स, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और baking and walking, positive thinking, excellent, self-counseling, reading, zabardast, nice sleep, very good, giving pattern back on things done, reading, cooking, excellent. Let's watch another video together and then we'll see कि क्या
हम कुछ और इजाफा करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी सेहत के ऊपर और कैसे ये इफेक्ट करती है स्ट्रेस। We live in a high-pressure environment. And while a certain amount of stress can be energizing, if the stress goes on too long, it can turn toxic, drain our energy. We live in a high-pressure environment, and while a certain amount of stress can be energizing, if the stress goes on too long, it can turn toxic, drain our energy, and damage our bodies and brains. A great way to manage stress is through choices 1 through 4, which keep you in the driver's seat of your life. But there are some additional actions you can take to get rid of the strain on your physical and mental energy. Stress is probably the biggest robber of mental energy. We know that stress hormones kill cells in the memory centers of your brain. Having too much stress actually puts more fat on your belly, which increases illness overall. It decreases your mood, so it increases your chance of depression, and it makes your muscles tense. They hurt. So being exposed to stress can affect every system in your body, including your immune system, so you're more likely to get sick when you don't have a regular stress management practice. The number one cause of stress is the negative thoughts running around your head. And I actually call them ants, automatic negative thoughts, the thoughts that come into your mind automatically and ruin your day. And what they should have taught you in the 2nd grade is you don't have to believe every stupid thought that you have. And this technique has been found to be as effective as antidepressant medication. So here it is. Whenever you feel sad, mad, nervous, or out of control, write down your automatic negative thoughts. So write down the negative thoughts and then ask yourself if they're true. Writing them down gets them out of your head. Challenging them uses the front thoughtful part of the brain to get rid of them. A lot of people, when they get stressed, self-medicate with things that are bad for them. So like high sugar foods or alcohol. The most effective way to deal with stress is eat a healthy diet because it'll balance your blood sugar. Low blood sugar, high anxiety. So balance your blood sugar. And also we found that low vitamin D levels and low omega-3 fatty acid levels also increase anxiety and depression. So getting your vitamin D level checked, taking a supplement if you need one, be very helpful, and boosting your omega-3 fatty acid level either with fish or taking fish oil can be very helpful to help your mood and decrease your level of stress. Another one of my favorite stress management techniques is very simple, deep breathing. I can help people break a panic attack in under a minute. This is how you do it. Take a big breath, and then take 5 seconds to blow it out. 1, 2, 3. Take another big breath. Take another 5 seconds to blow it out. Do that 5 times, and what you'll see is your level of stress will start going like this because the oxygen in your brain will go up, and your brain is very oxygen sensitive, and that all by itself will help break a panic attack and help you feel less stress. Do that 2 or 3 times a day. You'll be amazed at how helpful it is. When stress is high, sometimes our natural tendency is to hunker down and work harder. The truth is that in times of extremely high pressure, it's more important than ever to manage your stress well. Not only does it keep you healthy for the long term, it improves your immediate performance. Your thinking is better, your ideas are more creative, and your emotions are under control. You simply produce better results because you're keeping your fire burning and not burning out.
जी, what's your learning from this video? I received so many responses from parents. Yoga, mindfulness, meditation, some exercises. और एक बात यहाँ पर आई, नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अपने ही अंदर चलती हैं, वो हमें हर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, हमें किस में लाती हैं, स्ट्रेस में लाती हैं। उसका उसने एक मेथड लिखा उससे बाहर निकलने का, वो क्या है, कुछ शेयर करेगा? राइटिंग आवर नेगेटिव थॉट्स डाउन, वेरी गुड, हेल्प अस टू मैनेज आवर स्ट्रेस लेवल। जब हम उनको लिख लेंगे और उसके उनको एनालाइज करेंगे, क्या ये इस काबिल भी है, बात बनती भी है कि मैं इस पर सोचूं और अपने आप को स्ट्रेस में लाऊं, ये एक सबसे अहम तरीका है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है, विटामिन डी की बात की है, और विटामिन डी हमें अबंडेंस में मिलता है कब? वो कौन सा वक्त है जब हमें अबंडेंस में विटामिन डी मिलता है और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री? मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग सनलाइट, और सुबह सवेरे की सनलाइट, 10 बजे से पहले वाली सनलाइट इज फुल विद विटामिन डी। इसका मतलब है कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, नींद का मुकम्मल होना, और प्लस सुबह करके अल्लाह ताला की तरफ से फराहम की गई अबंडेंट विटामिन डी का इस्तेमाल करना हमें स्ट्रेस लेवल से निकालता है। अपने नेगेटिव थॉट्स को लिख लेना हमें स्ट्रेस से निकालता है। और याद रखिएगा, हम वो हैं जो हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, जो हम बज़ाहिर नज़र आते हैं वो नहीं, जो हम अपने अंदर ही अंदर गुफ्तगू करते हैं उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम असल में वो हैं जो हम अपने अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है आपके बारे में तय करता है आप कैसे होंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमसे लोग शेयर कर रहे हैं, थैंक यू। टेकिंग डीप ब्रेथ्स, वेरी गुड, ये आपकी लर्निंग है फ्रॉम दिस। उन्होंने बताया कि 5 दफ़ा जब भी आप स्ट्रेस में आए, तो कहते हैं मैं तो पैनिक जो अटैक होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी एक्सरसाइज इस्तेमाल करता हूँ लोगों के साथ, कि टेक डीप ब्रेथ, लंबा सांस लें और 5 तक गिनती गिनें और बाहर निकालें उसको। आप सल्लल्लाहु said, oh Allah bless my ummah in their early hours। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु ने दुआ मांगी कि मेरी उम्मत के सवेरे के वक्त में बरकत अता फरमा। ये इसीलिए है ताकि हम सुबह सवेरे उठ करके अल्लाह ताला की जो बरकत है उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी शेयर करते हैं आपके साथ। जी, हम एक वीडियो आपके साथ देखते हैं। अच्छी सारी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी एक वजह है, ये पहला मौका है कि हम इतना क्लोज इतने अरसे तक रहे हैं। और जब मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी स्कूल के टीचर ने शेयर की थी कि वालदा टीचर को फ़ोन कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई आप करते क्या है मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा तो पहले से ऐसे है और ऐसे और ऐसे है। और जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और तक एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स वो वालदा फ़ोन पे रोते हुए बाल बिखरे कह रही कि मैं आपकी हिम्मत और आपकी सलाहियत की आज क्या कहेंगे उसको तारीफ करने पे मजबूर हूँ कि आप इसको संभालते कैसे। तो हम इतने अरसे के बाद एक दूसरे के करीब रहे हैं, लंबे अरसे के लिए करीब रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो हम यहाँ आपसे एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसका नाम है इट्स अबाउट द हिडन स्टोरी। जब हम लोगों से बात करें, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे साथी हों, चाहे हमारे इर्द गिर्द लोग हों, जब उनसे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनकी हम बात सुन रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके पीछे क्या चल रहा है। सारी गुफ्तगू जब हम उनसे कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अंदाज़ा नहीं होती। तो इस वीडियो को हम एक साथ देखते हैं और आप यहाँ नोट करेंगे
कि क्या फ़र्क है, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इससे आप हमसे शेयर कर रहे होंगे। मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी आपके साथ और हम वीडियो शेयर करने लगे हैं। जी, क्या हमने इस वीडियो में महसूस किया, क्या सीखा, क्या समझ आई हमें? जी, यहाँ कुछ वालिदैन ने शेयरिंग स्टार्ट की है। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, different emotions and expressions. Be kind, be compassionate. Each of us carry our own baggages, stories of people. Everyone has their own story. Alhamdulillah, for all the blessing and empathy. Life has challenges. Touching and inspirational, be understanding. Everyone have a different struggles. Every person is. तो कैसा हो अगर हम लोगों के दिलों के अंदर झांक सकें, हमारे एक्शंस कैसे होंगे, हम कैसा ट्रीट करेंगे लोगों को अगर हमें उनके अंदर की बात पता चल जाए, उनके अंदर क्या चल रहा है। किसी ने कहा केयरिंग होंगे हम, वेरी गुड। हम दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे, हॉस्पिटैलिटी हो, काइंड होंगे, हम विद मोर एम्पैथी लोगों से बात करेंगे, डेवलप एम्पैथी, मोर एम्पैथेटिक होंगे, वी विल emphasize more, be compassionate regardless of what others are doing. Very good. Good listener honge, excellent. Tisal Arif. And listen more. Bilkul. Listen more means good listener honge. That's the change. जैसे ही आपको हकीकत का अंदाजा होता है, behind the story क्या हो रहा है, behind जो पता चलता है, less judgmental होंगे, excellent. और be available for others, excellent. Be available for others होंगे. Always think about others, good, excellent. Try to understand first, then to be understood. Mia Muhammad Zaid Akbar.
आई होप ये वालिदैन के नाम आ रहे हैं या आई डोंट नो बच्चों के नाम आ रहे हैं, बट जो नाम आ रहे हैं मैं वही शेयर कर रहा हूँ. Put yourself in others' shoes. Empathy. Very good. Excellent learning. जब हम दिल, हम कान, आँख और दिल से सुनते हैं लोगों की बात, तो हमारा बिहेवियर फर्क होता है लोगों के साथ. चाहे वो हमारे स्पाउसेस हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे हमारे स्कूल की इंतज़ामिया हो, चाहे हमारे साथिज़ा हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे हमारे शहर के रहने वाले हों. जब हम आँखों, कानों और दिल के साथ बात सुनेंगे तो फिर हमारा बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट होगा. यहाँ पे वालिदैन ने कहा जी इट्स माय सन्स नेम, वी चैटिंग एंड वी आर हिज पेरेंट्स एंड विल बी जेलस देन नॉट. और माशाल्लाह नॉट एक्सीलेंट रिस्पॉन्सेस. मैडम गजाला का रिस्पॉन्स है. थैंक यू मैडम गजाला फॉर शाबाश देने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अस एंड फॉर पेरेंट्स. थैंक यू वेरी मच. एंड आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और शेयरिंग करते हैं हम आपके साथ. हमारे कुछ वर्कशीट्स भी हैं. जनरेशन से जो टीम मेरे साथ है, अगर हम आपको वो वर्कशीट्स भेजें तो क्या हम पेरेंट्स को भेज पाएंगे किसी ज़रिए से? इज़ इट पॉसिबल कि हम उनसे शेयर कर पाएँ? शेयरिंग प्रोग्राम क्या अगर हम आपके साथ शेयर करें तो क्या वो हम पेरेंट्स को भेज पाएंगे ताकि वो एक्सरसाइज कर लें अपने बच्चों के साथ अपने घर में, खुद उस एक्सरसाइज से गुजर जाएं? यहाँ पे मरियम ने -9 लिखा. अब ये जो लैंग्वेज है ये मुझे समझ नहीं आती. एक्सरसाइज है. पेरेंट्स आर सेइंग दैट वी विल बी ऑनर्ड टू एक्सरसाइज. We'll be able to do that, inshallah. ओके, इंशाल्लाह. ये -9 भी मुझे समझाएं. फाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं समथिंग एल्स. रिस्पेक्ट अदर्स फॉर योर रिस्पेक्ट. थैंक यू. पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हम करेंगे इंशाल्लाह. फाइन, थैंक यू. इस सारी बातें, इनका ताल्लुक कुछ पैराडाइम से है. हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो जानते हैं व्हाट इज पैराडाइम? पैराडाइम क्या होता है जी? व्हाट इज पैराडाइम? आपसे सवाल है, व्हाट इज पैराडाइम? जी, रिस्पॉन्स. अच्छा, मैं उर्दू में किसी खास वजह से कर रहा हूँ ताकि हमें ट्रांसलेट ना करना पड़े अपने दिमाग में. थिंकिंग बिहेवियर. इम्तिसाल आरिफ साहब के वालिदैन ने कहा थिंकिंग बिहेवियर. नबीला हमदान के पहले ने कहा आर पर्सपेक्टिव, द वे वी सी थिंग्स. वेरी गुड. द वे वी थिंक. आरिस अब्दुल्ला from KG5 parents. The way we think. Very good. The way we see things, our mindset. And why it is important? Because this defines our behavior. Epic center of ideology. Fatima Adnan ke parents. Muhammad Zaid Akbar. The way we think and understand. Very good. The philosophy, the perception. Excellent. Excellent. तो हम एक वीडियो देखते हैं और इसको ज़रा मज़ीद क्लियर करते हैं कि इनका रोल क्या है, क्यों ये अहम है. इसको हम आपके साथ शेयर करने लगे इस वीडियो को. As you can see, our fantastic. We should have that all wrapped up. Appreciate that. So much of what we do in our personal lives and at the office is the result of the paradigms we hold. And what we do, in turn, affects the results we get. Thanks for coming to the meeting today, everyone. The word paradigm comes from the Greek root paradigma, meaning pattern. The pattern we expect to see, or the mental image of the way things are. We see everything through the perspective of our own paradigm. If you see your industry as one where growth is impossible, how does that affect what you do every day? And what results do you think you'll get from your actions? On the other hand, suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry.
how would that change your actions? What we see, our paradigms, determine what we do, which in turn determines what we get. And unless we consciously stand apart from and examine our paradigms, we might never see that perhaps many of them are distorted, short-sighted, or just flat out wrong. I remember a mini paradigm shift I experienced one Sunday morning on a subway in New York City. People were sitting very quietly, some reading, some resting with their eyes closed. Suddenly, a man and his children entered the subway car. The children ran yelling through the car, throwing things, grabbing people's newspapers. Their father sat down near me and closed his eyes and did nothing. I felt irritated. I could not believe he would let his children run wild like that. After a few minutes of patience and restraint, I turned to him and said, "Sir, your children are really disturbing a lot of people. I wonder if you could control them just a little more." Yeah, you're right. I should do something. Well, we just came from the hospital where their mother died about an hour ago, and I guess they don't know how to handle it. Yes, I don't know how to handle it. Can you imagine how I felt at that moment? My paradigm shifted. Suddenly I saw things differently. And because I saw differently, I thought differently. I felt differently. I acted differently. My irritation vanished. Compassion flowed freely. I wanted to help instead of criticizing and complaining. Once you see things as they really are, you'll think, feel, and act differently. And you'll do it automatically, spontaneously. Can you see why paradigms are deeper than attitudes and behavior? If you want to make minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant quantum breakthroughs, work on your paradigms. जी, अगर जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली चाहिए तो किस पे काम करना पड़ेगा, बिहेवियर्स पर या पैराडाइम्स पर? जी, किस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें, बिहेवियर्स पर या पैराडाइम्स पर? पैराडाइम्स, पैराडाइम्स जबरदस्त। जिंदगी में अगर हम वाज़ेह तब्दीलियां चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में अपने सोचने देखने के अंदाज पर काम करना होगा। जैसे शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जिंदगी नंबर्स की बुनियाद पर गुजारी जाती है, शक्ल और सूरत की बुनियाद पर गुजारी जाती है, या हाई आईक्यू की बुनियाद पर गुजारी जाती है। तो आपके जो जवाब आए वो था नहीं, कैरेक्टर पे गुजारी जाती है। कैरेक्टर बेहतर होना चाहिए। कुछ वालिदैन ने ट्रेड्स शेयर किए जिनका ताल्लुक डायरेक्टली कैरेक्टर से है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो इसका ताल्लुक भी कैरेक्टर से है। अगर आप अपनी कमिटमेंट्स के मुकम्मल करने वाले हैं तो भी आपके ताल्लुक कैरेक्टर से है। हमने अगर अपने बिहेवियर्स बदलने हैं तो उसके लिए हमें अपने पैराडाइम्स को बदलना होगा। अभी मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था तो मैंने अपनी कोच से बात की कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ इस मामले में। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा एंड इन माइंड क्या है, क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर पैराडाइम, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज दैट पैराडाइम मैटर्स। और हमारे अंदर वाज़ेह तब्दीलियां लाने के लिए हमारा पैराडाइम सही होना दुरुस्त है। हमारी सीढ़ी सही दीवार पर लगी होगी तो हमें फ़ायदा होगा। अगर वो सही दीवार पे नहीं लगी हुई तो हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे बिहेवियर्स हमें रिजल्ट्स ला के नहीं देंगे। छोटी छोटी तब्दीलियां ज़रूर आ जाएंगी। बिल्कुल बहुत ही, आई मस्ट से दैट
the participation from the parents is very commendable. The way you are involving in this. इसमें बड़ी एक अहम बात है कि पेरेंट ने शेयर भी की कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम समझते हैं, बल्कि दुनिया वैसी है जैसे हम हैं, जैसे हम देखते हैं, हमारा देखने का अंदाज है। इसीलिए तो प्यारे नबी ने कहा कि मोमिन आईना है, और आईने में क्या नजर आता है? आईने में क्या नजर आता है? आपका अक्स, बिल्कुल आपका अपना अक्स। तो दुनिया वैसी है जैसे आप हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप समझते हैं, बल्कि दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। तो पैराडाइम्स इतने अहम हैं। I requested Masood साहब to share the documents on the chat, ताकि मैं भी आपके साथ शेयर भी कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ, ताकि ये एक्सरसाइज हम आपके साथ शेयर कर लें। आपने इन पैराडाइम्स को अप्लाई करना है। आप अपनी कोई पर्सनल पैराडाइम शिफ्ट शेयर कर सकते हैं? आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो पैराडाइम शिफ्ट कभी जिंदगी में? यू एक्सपीरियंस्ड अ पैराडाइम शिफ्ट और उसके नतीजे में आपका बिहेवियर इमीडिएटली बदल गया हो। क्या हम आप अपना माइक अनम्यूट करके आई थिंक कर सकते होंगे, आई डोंट नो। अगर कोई शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज करे, तो हम विल ट्राई टू अनम्यूट फॉर अ व्हाइल, ताकि वो शेयर कर सकें, क्योंकि पूरा पैराडाइम शिफ्ट टाइप करना इज लिटिल डिफिकल्ट। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा जब उसने कोई पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में और उसके नतीजे में उसके बिहेवियर बदल गए हों? जी, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? जी, जैन उस्मानी, कोई मुझे हेल्प करेगा कि जैन उस्मानी साहब को हम थोड़ी देर के लिए उनके वालिदैन को हम अनम्यूट कर सकें, वो शेयर करना चाहते हैं। यस, ये मोहम्मद जैद के वालिदैन शेयर कर रहे हैं कि हमें शुरू में हुआ कि बच्चा हमारी बातों को नहीं सुनता और बाद में हमें पता चला कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। अनिका मसरूर, आपने भी रेज हैंड किया है, अगर आप मुझे हेल्प कर देंगी जैन उस्मानी साहब को अनम्यूट करने में, तो हम उनकी बात सुन पाएंगे। जी मैडम अनिका ने हैंड रेज किया है। जी Walaikum, can you hear me? जी, आपकी आवाज आ रही है। I'm Zain Usmani's mother and I'm teacher researcher by profession. I would like to share one thing is that I am in this profession since 16 years, and at the end of 10 years, I realized that smiling is a magic in itself. As I'm very serious and I'm math teacher, I'm very serious to be with my students during class. And one of my fellow observed me and tell me that if you smile, it creates a magic in your class. And I experienced, after 10 years of my teaching, I experienced that I have to smile, and it gives it's a visible change in the behavior of my students. They start liking math, they start interacting with me more comfortably, and I become more approachable to my students and my learners. And this is a great paradigm shift, not in just in my profession, in my real life as well, because by nature I'm a much serious person. But smiling, I must say, changed the world around you. Not just for you, around the people around you. बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि मोमिन के लिए मुस्कुराना भी एक सदका है, बताया। तो ये पैराडाइम शिफ्ट थी आपकी कि इससे एकदम से आपकी क्लास ट्रांसफॉर्म हो गई, बच्चों ने आपकी क्लास को और मैथ को पसंद करना शुरू कर दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मिकाइल समीर के वालिदैन भी शेयर कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द रमजान the person I disliked tried to be little nice to me. I shifted my paradigm from dislikeness to likeness, and our relationship totally changed. हमारे behavior automatically बदलते हैं, जैसे ही हमारी सोच का अंदाज बदलता है, हमारा behavior बदलता है. Making things easier for others. Very good. Thank you for sharing. मुझे सब अगर आप शेयर कर दें, अगर आप हमारे साथ हैं इस वक्त, तो
एक ये एक्सरसाइज है और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं ये आपको मिल जाएगी और फिर आपने ये करनी है. आप use this when you need to identify hidden assumptions and question them. Apply. Take time to do the following. Think of a personal paradigm shift or role change, realizing new information, witnessing a dramatic event. What was the event or circumstances? Why did it affect you? आपने उस इवेंट को अपने जहन में लाके इस सवाल को जवाब देना है. कल हम आपसे शेयरिंग मांगेंगे, आपने लिखा हुआ कुछ ना. What did you learn that changed your paradigm? आपने क्या सीखा था उस वक्त जिसने आपका पैराडाइम चेंज करके रख दिया और उस पैराडाइम शिफ्ट ने आपके बिहेवियर पे क्या असर डाला? जी आप इसकी आवाज आई थी बहुत ज्यादा आ रहा है. It's not clear. It's blurred. ब्लर आ रहा है, सबको ब्लर आ रहा है या कहीं कहीं नॉट क्लियर? अच्छा मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ. देखते हैं कि क्यों हुआ ये. अब बेहतर है? अब बेहतर है? नहीं. अब कुछ बेहतर हुआ? नहीं. This I think कर सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट जो है ना शेयरिंग हम कर देंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे. अच्छा ठीक है. अच्छा तो आपको फाइल को हम भेज रहे हैं. इसमें आपसे कुछ सवालात किए गए, उनका आपने जवाब देना है. एंड देन व्हाट इज पैराडाइम, व्हाट डू आवर पैराडाइम अफेक्ट अस. ये भी हमारी बात हो गई है. आपने यही काम अपने बच्चों के साथ बैठ के करना है. आपने यही काम अपने बच्चों के साथ काम करना है. ठीक है जी. हम अब आगे बढ़ते हैं इससे और अगली एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. आप में से कितने वालिदैन ऐसे हैं जिन्हें कभी आपके बच्चों ने हैबिट 5 के बारे में बताया हो, या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज हैबिट 5? व्हाट इज हैबिट 5? जी हैबिट 5 आप रिस्पॉन्ड करेंगे चैट बॉक्स में. हैबिट 5 के बारे में मालूम है आपको? बच्चों ने कभी आपसे डिस्कस किया? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज हैबिट 3. Yes. Seek first to understand, then to be understood. Arid Abdullah from KG5. Umayma Anwar, Minal Atta, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Arush, Asrosh Surani, very good. Muhammad Zaid Akbar. Think win-win is our habit 4. Habit 5 is seek first to understand, then to be understood. हम अपनी लाइफ में नॉर्मली हम बात क्यों सुनते हैं लोगों की? क्यों बात सुन रहे होते हैं हम लोगों की? वजह क्या होती है? बात सुनने की वजह क्या होती है? हम जब बात सुनते हैं उसके पीछे कौन सा पैराडाइम काम कर रहा होता है? कॉमन बार शेयर कर रहा हूँ. जी आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम कॉमन की बात कर रहे हैं. कॉमनली हम करते क्या है? वो हमारा बिहेवियर क्या होता है? आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं हम, और हम विल लिसन ओनली टू रिप्लाई बैक और डिबेट टू प्रूव आवर पॉइंट. वेरी गुड. नॉर्मल कॉमन हम ये कर रहे होते हैं. बीच में जो कुछ रिप्लाईज आए वो इफेक्टिव बात है कि हम अगर लोगों की बात समझने के लिए नॉर्मली आ रहा है कि नॉट लिसनिंग, अथॉरिटेटिव होते हैं, वांट टू बी अंडरस्टूड. ये इफेक्टिव वन टू गिव आंसर्स टू विन द आर्ग्यूमेंट. नॉर्मली हम इसीलिए इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आपको अभी तक ब्लर नजर आ रही है या कि नजर आना शुरू हो गई है? वी आर विद फिक्स्ड माइंडसेट्स. थैंक यू. ब्लर है. राबिया आपके साथ मैंने शेयर की थी, क्या आप शेयर करके यहाँ पहुंच सकते हैं? राबिया या मसूद साहब अगर आप शेयर कर लें, अगर मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है तो
राबिया आपके साथ ही कोर्स शेयर हुआ है। Okay, I'll do it. जी Masood sahab, would you be sharing? साहब आप शेयर करके देखिए। जी मैं करता हूँ। All right. जी मसूद साहब आप कर रहे हैं शेयर? जी मैं उधर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर आप वहां तक पहुंचिए, जब तक मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूं और जरा डिस्कशन करते हैं वालिदैन के साथ। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको मेरी? जी ये नजर आ रही है? क्लियर नजर आ रही है? क्लियर है? हाँ यस थैंक यू। अच्छा जी ये आपसे सवालात हैं मेरे वालिदैन से और चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे। नॉर्मल कॉमन पैराडाइम क्या है मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द, and I'm not talking about generations around us, जिन स्कूलों से हम पढ़े थे या जिस मुआशरे में हम रहते हैं, कॉमन पैराडाइम क्या है? क्या लीडरशिप चंद लोगों के लिए है या सब के लिए है? क्या this is for few or for everyone? What is the common paradigm? For few, for few. Yes, power for few. If I'll ask you कि अगर आप अपने स्कूल का ज़माना याद करें, अपने स्कूल का ज़माना याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तो आपकी क्लास में मॉनिटर कितने हुआ करते थे? 1 मॉनिटर, 1, 2, जहां 2 होते थे वहां दूसरा कौन होता था? असिस्टेंट मॉनिटर, 1 और 2 असिस्टेंट मॉनिटर, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ये कॉमन पैराडाइम है कि लीडरशिप चंद लोगों के लिए है, ये उसका बिहेवियर है स्कूल में। हम कहते हैं जो लीडर इन मी स्कूल है, जैसे जनरेशन है, ये कहते हैं नहीं, लीडरशिप इज फॉर एवरीवन, हर फर्द के अंदर। और किसी ने शेयर किया है हैंड मॉनिटर्स मस्ट बी टॉपर्स, नॉट एवरीवन इज लीडर, फेवरेटिज्म वाज कॉमन, वेरी गुड। तो ये हम कहते हैं भाई हमें ऐनक बदलनी होगी, असातिज़ा को, टीचर्स को, स्कूल में मौजूद दीगर अफराद को, वालिदैन को ये ऐनक बदलनी होगी कि लीडरशिप हर फर्द में हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को ये सलाहियत दी है। जब हम अपनी ये ऐनक बदलेंगे तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलेगा। हमजा साहब कह रहे हैं कि बट नॉट एवरीवन बिकम अ लीडर। अगर हमें मौका ही नहीं दिया गया, व्हाइल वी वर स्टूडेंट्स, हमें मौका ही नहीं दिया गया, तो हमारे अंदर अगर वो मौका मिलता तो जो सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। और लीडरशिप का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं बहुत बड़े मजमे से बात कर रहा हूँ। लीडरशिप का मतलब अपनी ज़ात को लीड करना भी है, किसी एक फर्द को लीड करना भी है, फैमिली को लीड करना भी है, मोहल्ले को लीड करना भी है और बहुत बड़े मजमे को लीड करना भी है। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात को ही लीड नहीं कर सकते, हमारे अंदर परसिस्टेंस ही नहीं है, परसिस्टेंस ही नहीं है, हमारे अंदर कैरेक्टर ही नहीं है, तो हम अपने आप को भी लीड नहीं कर सकते। तो लीडरशिप इज फॉर एवरीवन, हर फर्द एज, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कहा है, प्यारे नबी ने कहा है कि हर फर्द अपनी जो फैमिली है उसका लीडर है। आपसे मैं शेयर करूं कि व्हेन आई वाज इन मलेशिया, तो चाय सर्व करने मुझे और मेरे साथियों को, जो हम मेहमान स्कूल गए हुए थे, चाय सर्व करने कौन आए? मॉन्टेसरी के बच्चे। और उनका सवाल मैं हर जगह शेयर करता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल था, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव?
कॉफ़ी, टी और मी। हमने उनकी मी चेक की तो उन्होंने आगे हक किया और उसके बाद उनका हमने कहा हम चाय लेंगे तो उन्होंने कहा कौन सी चाय लेंगे, हमने कहा हम ग्रीन टी लेंगे, उनका फिर आप कितनी चीनी लेंगे, हमने बताया तो वो बच्चे एक एक कप अपने हाथ में लेके 5 लोगों के लिए लेकर के आए और पता चला कि ये उनका लीडरशिप रोल है कि जब भी कोई स्कूल में आएगा मेहमान तो उनकी खातिर मदारत ये बच्चे करेंगे। हम थाईलैंड गए तो हमें स्कूल का विजिट बच्चों ने कराया। हम मलेशिया के टॉप 10 चाइनीज स्कूल में से जो 2nd नंबर पे उसमें गए तो वहाँ पे पूरे स्कूल का विजिट हमें बच्चों ने करवाया। और हम किसी क्लास में गए तो हर बच्चे के पास एक रोल था और फौरन अपनी जगह पहुँच जाते थे। और इसका जब ये मौके मिलते हैं, मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर साबित करूँगा। जैसे अभी आप ही लोगों ने शेयर किया कि फेवरेटिज्म आ जाती थी, टॉपर्स के पास ये होता था, अनफॉर्चुनेटली हमें मौका ही नहीं मिला उस वक्त। फिर दूसरा पैराडाइम है, ये भी आप ही से सवाल है और हम अपने ज़माने को याद करें, आप जनरेशन से अलग करके इस बात को याद करें। माशाल्लाह से जनरेशन इज फॉलोइंग सो मेनी इफेक्टिव प्रैक्टिसेस। अगर आप अपने स्कूल को, अपने इर्द गिर्द के माशरे को ज़रा सोचें तो एक और पैराडाइम है पोटेंशियल का। जी सवाल आपने पूछा कैन यू अप्लाई दिस एट होम? डेफिनेटली 100%, 110% आप इसको घर में अप्लाई कर सकते हैं। घर में लीडरशिप रोल दीजिए अपने बच्चों को कि फॉर एग्जांपल पानी की मोटर चलानी है, द लीडरशिप रोल ये तुम्हारे पास है, तुम यू आर द लीडर ऑफ वाटर। इस तरह से आप उनको दे सकते हैं। हाँ, आपसे फिर सवाल है कि क्या हर फर्द गिफ्टेड होता है या चंद लोग गिफ्टेड होते हैं और बाकी लोग ऐसे होते हैं जरा नॉर्मल, नालायक, कमजोर, चंद लोग गिफ्टेड होते हैं? क्या है कॉमन माशरे में, क्या पैराडाइम है कॉमन? अब आप शेख की वाला जो बता रहे हैं, वाले जो बता रहे हैं, दैट इज यू नो दीज आर द इफेक्टिव वन। कॉमन क्या है? कॉमन आपके साथ सम, yes, common, few are gifted, this is the common। unfortunately it's the other way ही हमारे माशरे में। और वो जो commonly few, common people don't believe everyone to be gifted, yes, commonly the main paradigm जो हमारे माशरे में चलता है वो है कि चंद लोग गिफ्टेड होते हैं। अब आप अपनी क्लास को याद कीजिए, अपनी क्लास को, अपने बच्चे की क्लास को नहीं, और आप बताइए कि वहाँ कुछ खास बच्चे होते थे जिनको कॉपियाँ भी उन्हीं की जा रही हैं, मॉनिटर भी वही बन रहे हैं, प्रीफेक्ट भी वही बन रहे हैं, गेम्स में भी वही जा रहे हैं। ऐसा था? यस, ऐसा ही था। यस। वजह यह है कि यही पैराडाइम इन्वॉल्व था। जब आप हर बच्चे को देखेंगे, आपका स्कूल इफेक्टिव होगा। अरफान खान के जो वालिदैन हैं आपका बिल्कुल होगा। तो फेवरेटिज्म, बाकी जो हमारे वालिदैन, जो मेजॉरिटी कॉमन जो रिप्लाई आ रहा है दैट इज 90% यही आ रहा है कि फेवरेटिज्म था। और यही वजह है कि जब हम कहीं इवेंट में शरीक होते हैं और कोई सवाल पूछा जाए तो हम इंतज़ार करते हैं चंद जवाबों के आने का और उसके बाद हम अपना जवाब देने के काबिल होते हैं, क्योंकि इस पैराडाइम की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली। इसके बाद अगला पैराडाइम है चेंज का। कॉमन पैराडाइम क्या है? निज़ाम बदलेगा तो तब्दीली आएगी। कॉमन क्या है? या हम बदलेंगे तो तब्दीली आएगी। माशरे में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है कि निज़ाम के बदलने से तब्दीली आएगी, चेहरों के बदलने से तब्दीली आएगी, या हमारे बदलने से तब्दीली आएगी। बट कॉमन है निज़ाम के, सिस्टम बदलेगा तो तब्दीली आएगी, चेंज ऑफ सिस्टम। जबकि इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव है हम बदलेंगे तो तब्दीली आएगी। और पाकिस्तान में एक इदारा है जो इसकी बहुत ही शानदार मिसाल है और वो है मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। वो हम बदलेंगे तो तब्दीली आएगी पर काम करते हैं।
इसी पुलिस से जिससे आप बात करते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हम फौरन रिटेलिएट करने को तैयार हो जाते हैं इनके ऊपर। जब ये वहाँ जाते हैं तो चेंज स्टार्ट्स विद मी वाला मामला स्टार्ट होता है उनके साथ, और जब वो चेंज हो जाते हैं तो वही लोग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलते हैं, आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगता है। अगला पैराडाइम है द मोटिवेशन। जब आप स्कूल में थे तो क्लास का चार्ज किसके पास होता था? टीचर के पास या आपके पास? मिस के पास होता, टीचर के पास होता। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी से मुतालिक एक सवाल है। आपको अपनी स्कूल के ज़माने में क्लास 7, 6 या 5 या 4 में मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 5 क्या पढ़ा था, याद है आपको? नो नो नो। लेकिन ये जरूर याद होगा अलजबरा में क्या पढ़ा था। आपको ये जरूर याद होगा कि शरारत क्या की थी। आपको ये जरूर याद होगा इनाम कब मिला था। आपको ये जरूर याद होगा कि आपकी तारीफ कब की गई। आपको ये जरूर याद हो। आप इवन अगर आपसे कहा गया इसे तो ड्रामेटाइज कर दें, दोबारा बना के दिखा दें, तो आप एग्जैक्टली हर चीज अपनी क्लास में जाके वैसे ही बता सकते हैं। और कहते हैं कि आज की तालीम का सारा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि हम याद कितना अच्छा रख सकते हैं, और इंसान की याददाश्त होती ही कितनी है। और इल्म वो है जो सब भूलने के बाद आपको याद रहे, वो आपका इल्म है। तो सब भूलने के बाद आपको याद रहा, उतने ही आलिम हैं आप। तो हम तालीमी इदारे के साथ मिलके इस बात पे काम करते हैं कि हम बच्चों को एम्पावर करें कि वो अपनी लर्निंग को खुद लीड करें। यस, गुड मेमोरीज ऑलवेज स्टे। इसीलिए आपके बच्चों को लीडर में काम मिलता है, टीच एट होम, ताकि उनकी लर्निंग की लीड उनके पास आए, आपको आकर के पढ़ाएं। और जब आप किसी को टीच टू लर्न करते हैं, यानी कि उसको पढ़ाते हैं कुछ, तो आप उस नॉलेज को 90% रिटेन करते हैं अपने साथ। और आखिरी पैराडाइम है जो बहुत अहम है, और इसमें आप लोगों का भी रिस्पॉन्स। क्या कॉमन पैराडाइम है हम अपने स्कूलों में अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? अच्छे नंबर्स, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, किस चीज पे हम मेहनत करते हैं? गुड एकेडमिक्स, गुड ग्रेड्स, गेट गुड ग्रेड्स। वानिया खान के वालिदैन कह रहे हैं, आरएस के वालिदैन कह रहे हैं ग्रेड्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुड ह्यूमन बीइंग, बट मेजॉरिटी इज अबाउट ग्रेड्स। यस, हम कहते हैं कि हमें बदलना होगा, हमें होल चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करना होगा, हमें उन्हें एक मुकम्मल इंसान डीप लर्निंग के साथ बनाना होगा। ऑलराउंडर होने चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी मजबूत होनी चाहिए। और ये जो 4 C's हैं, या आप लोग नोट कर लीजिए कि इस 21वीं सदी में जिसके 20 साल हम गुजार चुके हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, फर्स्ट C इज कम्युनिकेशन। हमारे बच्चे कम्युनिकेशन के काबिल हों। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर के काम करने की सलाहियत रखते हों। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी मामले में गौर व गौस करने की सलाहियत रखते हों। और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर आने वाले मसले को नए अंदाज में हल करने की सलाहियत रखते हो। ये जो जनरेशन और हम मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, देखें स्कूल के ना 3 एरियाज होते हैं। इन 3 एरियाज में स्कूल काम करता है। दुनिया का कोई भी स्कूल हो, उसके पास ये 3 एरियाज है, एकेडमिक्स, कल्चर और लीडरशिप। आपके ख्याल में आप जब स्कूल में थे तब और आजकल स्कूल ज्यादातर वक्त किसको देते हैं?
ज्यादातर वक्त किसको देते हैं जी? ज्यादातर किसको देते हैं वक्त इन तीनों एरियाज में से? एकेडमिक्स को। उसके बाद किसको मिलता है टाइम? थोड़ा बहुत किसको टाइम मिलता है उसके बाद आपके ख्याल में? कल्चर को। और आप यकीन जानिए, अब तक मैं सैकड़ों स्कूलों से मिल चुका हूँ, ये तरतीब नहीं बदली है। आज वालिदैन ने भी वही तरतीब रखी है, एकेडमिक्स, कल्चर एंड तीसरे दर्जे पे लीडरशिप। इफ यू वांट टू डेवलप अ होल चाइल्ड, अगर हम एक मुकम्मल इंसान डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? बहैसियत वालिदैन और स्कूल के हमें इन तीनों एरियाज को बराबर का वक्त देना होगा। और उसमें सिर्फ बराबर का वक्त नहीं देना, बल्कि इनका आपस में ताल्लुक भी होना चाहिए, या आपस में लिंक होने चाहिए। एकेडमिक्स में कल्चर की बात हो, एकेडमिक्स में लीडरशिप की बात हो, लीडरशिप में एकेडमिक्स की बात हो, लीडरशिप में कल्चर की बात हो। एकेडमिक्स में ये सारी जब तक ये आपस में लिंक नहीं होंगे, घर पर भी और स्कूल में भी। आप बड़े स्कूल हैं क्योंकि आपके पास बच्चा 18 घंटे के लिए है, हमारे पास बच्चा 6 से 7 घंटे के लिए है। आप हमारे साथ नहीं आएंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे, तो मुश्किल होगी होल चाइल्ड डेवलपमेंट के काम के लिए। तो हमने इनको घर में भी, और स्कूल तो इसकी कोशिश कर रहा है, बहुत पहले से कोशिश कर रहा है, और एकेडमिक्स, कल्चर और लीडरशिप को बैलेंस करना होगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आज क्या आपको मालूम है कि साइंस क्या कहती है कि 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को रोजाना एक्टिव गेम्स में कितनी देर खर्च करनी चाहिए? किसी को टाइम का पता है कि कम से कम इतना वक्त जरूर लगाना चाहिए उसको? क्या आप में से किसी को मालूम है कि 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को लाजमी कितना गेम खेलना चाहिए? लाजमी कम से कम 1 hour, 2 hours, not exactly. Change of thinking to 1 hour, 1 hour, 30 minutes. 1 hour he gets tired, half hour. आपको बताते हैं कि जिन्होंने 1 hour रिप्लाई किया है, मिनिमम 1 घंटा रोजाना उनको एक्टिव फिजिकल गेम का मतलब लूडो, कैरम, चेस नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 1 hour, फ्री प्ले 1 hour, एटलीस्ट 1 hour आपको उनको देना चाहिए कम अज कम। और जो 3 से 5 साल से छोटे हैं 3 घंटे। अच्छा, सवाल आप नहीं समझ सके। सवाल ये था कि कितना वक्त मिलना चाहिए खेल के लिए। तो जो 5 साल से 18 साल है उनको कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए मिलना चाहिए, और जो 5 साल से छोटे हैं उनको कम से कम 3 घंटे मिलने चाहिए। नहीं, 30 मिनट कम है, आपको कम से कम 1 घंटे पे आना है। और आपको खुद कितना लगाना चाहिए आपको अपने लिए पता है? बीइंग एन एडल्ट हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए पर डे? नो वर्चुअल गेम, नो स्क्रीन टाइम। इसमें ये फिजिकल एक्टिविटी, कंप्लीटली फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना, भागना, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, 1 घंटा 1 hour। अब लिख लें अपने पास 1 hour, एटलीस्ट 1 hour। और जो 5 साल से छोटे हैं एटलीस्ट 3 hours। और खुद के लिए कितना चाहिए आपको? एडल्ट्स को कितना चाहिए? कम से कम 45 मिनट। जी, आपको 150 मिनट पर वीक कम से कम मॉडरेट एक्टिविटी में खर्च करना चाहिए। आपको 150 मिनट 150 मिनट्स एटलीस्ट पर वीक, एंड 75 मिनट्स हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के अंदर आपको खर्च करने चाहिए एज एडल्ट।
150 minutes moderate activity and 75 minutes high intensity activities के अंदर हमें खर्च करने चाहिए। और ये चेंज मॉडल है और यही चेंज मॉडल अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि ज़िंदगी में कुछ भी हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमें अपने पैराडाइम सी देखने के अंदाज पे काम करना है, फिर हमें अपने बिहेवियर बदलते हुए नज़र आएंगे और हमारे बदले हुए बिहेवियर हमारे नतीजे को बदलेंगे। जैसे गोएटे ने कहा था, जो जैसा है अगर आप उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे तो वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है, और अगर किसी को आप वैसे ट्रीट करेंगे जैसा आप चाहते हैं तो वो वैसा हो जाएगा जैसा आप उसको चाहते हैं। जैसे किसी ने सवाल किया था ना पीछे कि क्या हम ये घर पे कर सकते हैं? हाँ, आप लीडरशिप रोल अपने बच्चों को दें ताकि वो वैसे हो जाएं जैसे आप उनको चाहते हैं। एक वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये हम मिलके देखते हैं और देखेंगे लीडरशिप क्या है।
G. Leadership is communicating people's worth and potential so clearly that they are inspired to see it in themselves. As parent, as family leader, this is your responsibility to communicate your children's potential and worth so clearly so that they start seeing that in themselves. So for today, we'll stop our session here. Masood Mir Saab will share the 2 activities with you, which I want you to do at home with your children. And tomorrow, come with your stories, what happened, क्या रहा, कैसे रहा, कैसे आपने उसको महसूस किया घर पे, और फिर कल हम आगे इसी कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी लर्निंग मौजूद है आगे, और अगर अभी कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू जो मेरे साथ से जो मेरे साथ इसको हैंडल कर रहे हैं वो टेक चार्ज है, सवाल है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। और from where we'll get the worksheets, वो आपको ये मैंने मैडम अनीका से शेयर कर दी है, वो आपको मिल जाएगी। Okay, Madam Anika will be sharing those worksheets with you over the communication medium you have, the channel आपके पास जो भी है। और आप लोग जो आए, आपने जो वक्त निकाला, ये आपके बच्चों की अपने इर्द गिर्द की पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ाए हैं। और आपके बगैर will the recording be available for us later on? इसका जवाब हमारे generations की टीम दे पाएगी, हमारी साथी टीम जो है। Few parents are asking for recording of this session. जी, hope the day will bring change in our life. I had goosebumps. Thanks for nice conversation and knowledge. Thank you very much. Jazakallah. जी, मैरीन फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। G, yes, the video will be available for the parents. Okay, ये अवेलेबल होगी आपको, और वो आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी कहाँ, कैसे, किस तरह, और शीट्स भी आपको अवेलेबल होंगी। एंड इंशाल्लाह कल हम इस लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे और इसमें और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेहतरीन लर्निंग के लिए हमें आपसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों की लर्निंग में भी इजाफा होगा और हमारी अपनी लर्निंग में भी इजाफा होगा। As we keep on learning from each other, and बहुत बहुत शुक्रिया for arranging an event, for bringing parents on board, and thank you very much. और मेरी टीम मसूद मीर साहब मेरे साथ हैं, नबीला कामरानी मेरे साथ हैं। Thank you for staying with me and helping me out in this session. And the team from Generations, thank you, Marine, Madam Anika, Faisal, Rabia, Mariam, Madam Rosala, thank you very much. Madam Nurani, thank you. And the parents, thank you very much. Now we invite Dr. Ghazala for the closing remarks. Dr. Ghazala Siddiq. Right. I thought Mrs. Norani, would you like to do that? Mrs. Norani? Dr. Zala, we've had a good session today, mashallah. A lot of learning, a lot of reminders. Basically, we've been on this with Fazal Saab before also, but in this context, with this staying home, I think retuning was needed, and mashallah, that's been done. And inshallah, we hope tomorrow we'll continue with this. Again, आज की learning apply करने के बाद अगर हम दोबारा कल मिलेंगे
तो यकीनन हमारी learning और ज़्यादा enhance होगी and application of that will be possible. So Dr. Ghazala, if you would want to add something to this, today has been good so far. Inshallah, we hope to continue with this tomorrow as a little more aware of what how we can utilize our time and energies staying in. Yeah, okay. Yes, Assalamu alaikum, everyone. Well, it has always been and it will always be, and it is the biggest challenge for adults, parents, and the school and the teachers and the educators to find the balance between how to actually communicate the person's worth and potential so that actually they start believing in themselves. And I think that's what all education is all about. So we have to, but of course, inshallah, we are all trying to do that. We are all trying to see to it कि अगर हमें बचपन में जो experiences नहीं मिले, positive experiences, वो हम अपने बच्चों को at least pass on करें, अपने students को pass on करें. और जो हमें अच्छी चीजें बचपन में मिली हैं उसमें वो भी हम उनको pass on करें. जो बुरे experiences मिले वो हम pass on ना करें. It's a challenge. But आज के इसमें माशाल्लाह I would say कि फजल साहब it was very, I would say quite very effective and impactful, and I hope the videos that we watched together was very important, that we learned together. The feedback, I'm really very happy with the feedback that the parents were coming up with. Jazakallah, thank you so much, parents, for all your efforts, your time, and for being here. And as it is कि घर में भी आप leadership आपको घर में भी करवानी है, leadership school में भी करवानी है, माशरे में भी करवानी है, at all levels inshallah. और in courses में what I like the best about these कवि workshops is कि इसमें इतनी ऐसी tips होती हैं जो आप कहीं पर भी रहते हुए आप करवा सकते हैं बच्चों को, चाहे वो आप घर पे हो. पेरेंट्स का खास तौर पे वर्कशॉप इसलिए है because वो these are all applicable and you can apply these at home, in the family environment, in your household setups. आपके डाइनिंग रूम में, किचन में, बेडरूम में, बाहर, लॉन में, लाउंज में, अंदर कमरों में, जहां आप चाहें. It's the interaction with the child इंशाल्लाह. तो आज जो हमने सीखा इंशाल्लाह फिर आज हम प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करेंगे और कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कि कैसे हमारे माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं, पैराडाइम्स चेंज हो रहे हैं. बहुत शुक्रिया फजल साहब, मसूद, मीर साहब, and everyone, Generations team, Jazakallah khair, and thank you so much. Very special Jazakallah to the parents. It was really nice seeing you, and some of you were participating very actively. So thank you so much. Yeah. Well done. Thank you. And मैडम ग़ज़ाला, एक बात मुझसे रह गई. शुरू में मैंने आपकी एक वीडियो भी शेयर की थी. आपने खुद में आप उस वक्त थे हमारे साथ कि आप नहीं थे या जी नहीं I joined halfway through, तो मैंने देखी वो मैंने थोड़ी देखी. चलो that's good. We have worked hard on that. जी हाँ जी, ये पेरेंट्स के साथ शेयर करने लगा हूँ मैं कि हमने पेरेंट्स के लिए भी एक रिसोर्स अब कर दी है, दैट इज लीडर इन मी एट होम. अच्छा जो कि वालिदैन ये वेब बेस्ड भी है और मोबाइल बेस्ड भी है, और हमारे लिए और जनरेशन्स के लिए, पाकिस्तान के लिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई कंटेंट हमारे कंटेंट में शरीक हुआ. और वो जनरेशन के लिए एजाज़ की बात ये है कि वो मैडम ग़ज़ाला अलॉन्ग विद फैमिली एंड मैंने शेयर भी की थी शुरू में वीडियो. ये ऑनेस्टी के अंदर आप लेसन 9 ऑनेस्टी के अंदर मौजूद है मैडम आपकी वीडियो. मैंने पहले शेयर की थी जी. ये आ गई है कुछ दिनों में. हाँ जी, कुछ दिनों में ये पेरेंट्स को भी अवेलेबल हो सकेगी. मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपने मिस किया तो दोबारा देख लें और हमारे पेरेंट्स भी देख लें. Thank you. Jazakallah khair. Welcome to the Leader in Me at Home lesson called Honesty. I am Ghazala Siddiqui, my husband Irfan, and I have 4 children, Alhamdulillah, of whom 3 are married. We are blessed with 7 grandchildren. We have with us our mom, our son Shoaib, and daughter-in-law Samiha, Mustafa, and Nusaiba. Video is not visible.
कल हम आपके साथ कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे जो आप घर पे यूज कर सकते हैं। तो आज अगर ये वीडियो में मसला आ रहा है तो कल इंशाल्लाह हम इसको कल इंशाल्लाह कर लेंगे, कल कर लेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि ये वीडियो मैंने जो है वो काफी घर पे मुश्किल हालात चल रहे थे और ये कोविड के लिहाज से ही और इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो हो गई। सो दैट्स गुड, जज़ाकल्लाह। बट आई एम रियली, वी आर ऑल रियली वेरी ग्लैड कि ये पाकिस्तान की तरफ से पहला आप कह रहे हैं कि दिस इज video from Pakistan that is included in the Kabir video, so it's for the Pakistan itself and for the whole nation, inshallah. I mean, that's good. Jazakallah. Thank you so much for the opportunity. And I hope कि इनको मालूम होगा, thank you, और I hope वालिदैन को मालूम होगा कि जनरेशन के ही एक बच्ची ने वर्ल्ड स्पीच कंपटीशन में एज 11 to 15 की कैटेगरी में पहला इनाम लिया है $1000 का। ये भी हमारे लिए एक एजाज की बात है कि पाकिस्तान ने इस साल 2 इनाम लिए, एक जनरेशन ने लिया और एक हमारा और पेरेंट स्कूल है जदीद दस्तगीर, उन्होंने लिया। और टॉप 10 में भी 4 बच्चे हमारे शरीक रहे, जिसमें 3 जनरेशन के। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। Jazakallah. Jazakallah, Mr. Fazal Niazi. Thank you so much, Dr. Zala, for your address. We formally end the session over here. Allah Hafiz. Expect to see you all same time tomorrow, inshallah. We end here with a dua. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallah. Allah Hafiz. Jazakallah. Thank you.